Hey everyone, Abutala this side. Hope you are good and doing very well. Today we will know how to create a portfolio, how to create an appealing portfolio. If you have just started your freelancing journey and struggling a lot in creating a portfolio, then this video is for you. If you watch this video till the very end, you will get to know how you can create a portfolio for yourself, which will help in closing the deals and build trust to your clients. So time snaps are also given. You can jump to a certain part as well if you want. I assume that everyone here knows about portfolio. Okay, what is it, how it works, and what role it does play in your freelancing journey. But still, for newbies, let me explain that portfolio is like a sample of all your previous projects, of all your testimonials that are given by your clients, all the results that you have brought for the clients on your previous projects. यानी कि portfolio एक ऐसी मतलब showcase है जहां पर आप अपने आप को दिखा सकते हो क्लाइंट को कि what you know about your niche, उस niche से related जो है अपने previous projects पे काम किया है या नहीं, यानी कि आपको उसके अंदर कितनी एक्सपीरियंसेस हैं. सो पोर्टफोलियो इज सिंपली अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एज अ फ्रीलांसर एंड टू बिल्ड ट्रस्ट विद क्लाइंट्स, राइट? And now let's know how it plays an important role in freelancing journey. Suppose that you have applied for a job, then what you do there? First of all, you send your CV or resume, and then after shortlisting, they call you for an interview. So what they ask or what the interview is all about to judge you. By knowing your expertise, by knowing your past experiences, it means कि आप जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप फिट हो या नहीं, वो ये जांचने के लिए आपके CV को देखते हैं, आपके रिज्यूमे को देखते हैं, आपके बैकग्राउंड को जांचते हैं, ताकि वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके और वो ये जान सके कि आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आप फिट हो या नहीं. सो सिमिलरली इन फ्रीलांसिंग, व्हेनेवर यू अप्रोच एनी क्लाइंट, the client wants to ensure you that you are the right fit for their project. They can trust on you कि वो जिन्हें प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो उसके लायक है कि नहीं, और ये काम करता है पोर्टफोलियो. So the first thing that portfolio does is that it expresses you. It helps you express yourself in front of your client, right? And I think it is the major role of a portfolio. क्योंकि ना होता ही है कि आप जब भी किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो ना, तो यू आर अननोन फॉर देम एंड दे आर अननोन फॉर यू. सो देयर नीड समथिंग जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकें और वो ये ट्रस्ट कर सकें कि वो अगर उन्हें ये प्रोजेक्ट हैंडओवर करते हैं तो वो उसे पूरा कर सकते हैं. So now let's know how to create a portfolio. First of all, I will tell you few important points that you must keep in your mind while creating one, and then I will give you an overview of every type of portfolio that works today, and then I will give you an overview of every portfolio that how you can make one. So now let's start with first of all important points that while creating a portfolio, the first thing you should keep in your mind is your client's perspective. आप ना suppose करो कि you are a client and a freelancer approaches you. What that one thing that comes to your mind suddenly? आप सपोज करो कि कोई एक अननोन फ्रीलांसर जिसे ना आप जानते हो और ना वो आपको जानता है, और वो आपको अप्रोच करता है और आपको कहता है कि ही कैन हैंडल योर इंस्टाग्राम पेज एंड हेल्प यू ग्रो. तो आपके जहन में क्या क्या बातें आएंगी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाइल क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो. क्योंकि ना आप जब भी एक पोर्टफोलियो दिखाते हो तो ये वही पर्सपेक्टिव से वो क्लाइंट भी सोच रहा होगा जो आप अभी सोच रहे होगे. आप पहले तो ये सोच रहे होगे कि आप किस तरीके से इस बंदे पर ट्रस्ट कर सकते हो, कि क्या इसने ये काम पहले कर रखा है या नहीं, फिर अगर काम इसने किया है तो क्या रिजल्ट ये लाया है, फिर उसके बाद इसके फीडबैक्स क्या क्या हैं इसके पहले क्लाइंट से, फिर इसकी रेट्स क्या क्या हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल गेट फ्रॉम क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक योरसेल्फ एज अ क्लाइंट एंड देन नोट डाउन व्हाट थिंग्स कम इन योर माइंड, एंड देन द नेक्स्ट थिंग योर स्किल सेट. पोर्टफोलियो इज सिंपली योर शोकेस कि आप जो है उस नीश के बारे में कितना जानते हो और आपने उस नीश में कितना काम पहले से ऑलरेडी कर चुका है, और फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे तो उसमें से क्या रिजल्ट्स मिले. तो जब भी आप पोर्टफोलियो बनाने बैठो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज ऑल योर बेस्ट वर्क्स, बेस्ट रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, स्क्रीनशॉट्स ऑफ फीडबैक्स, रिव्यूज. आप उन सबको जो है ना वो एक जगह रखो, और फिर जब आप पोर्टफोलियो बनाने बैठो तो उन सभी को जो है वो एक पेपर के फॉर्म में, एक PDF के फॉर्म में, या फिर PPT के फॉर्म में, या फिर किसी एक वेबसाइट में उसे ऑर्गेनाइज कर दो. एंड नाउ कम टू द लास्ट पार्ट कि हाउ यू शुड क्रिएट अ पोर्टफोलियो. वो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू शुड टेक. तो आप सबसे पहले क्या करो कि शॉर्ट लिस्ट योर बेस्ट प्रोजेक्ट्स. अब आपको लग रहा होगा इसमें से कुछ जो न्यूबीज होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि जिनके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंसेस नहीं है, कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं. तो इसी की वजह से जो है ना मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस. आप किसी भी फील्ड में हो ना, उसमें आप जब प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करने के दौरान जितने भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पर आपने जो काम किया है, भले ही वो प्रोजेक्ट किसी रियल क्लाइंट्स के लिए नहीं थे,
बट वो प्रोजेक्ट तो थे आपके उस नीश में। तो जब तक आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलता है ना, तो प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस करोगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर ही रहोगे। सो दैट प्रोजेक्ट विल बी योर बेस्ट प्रोजेक्ट और योर सैंपल फॉर योर पोर्टफोलियो। तो अगर आपके पास कोई अभी तक क्लाइंट्स नहीं है, इसमें फिक्र करने की बात नहीं है, आप सिंपल जो है आपने जो प्रैक्टिस के दौरान जितने भी प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, आप जो है अपने पोर्टफोलियो पे उसे लगा सकते हो। एंड देन राइट डाउन कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहोगे। जब क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो को देख रहा होगा तो इन फर्स्ट 30 सेकंड्स देन व्हाट यू विल वांट हिम टू नो अबाउट यू, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग वन। तो उसमें आप चूज करो अपने हिसाब से, अगर आप एक कंटेंट राइटर हो और थोड़ी सी अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो आप कैनवा से या फिर फोटोशॉप से जो है वो सिंपली ग्राफिक्स में अपने सारे टेक्स्ट को, सारे प्रीवियस वर्क्स को, स्क्रीनशॉट्स को इन डिफरेंट पेजेस आप लगाओ, उसे आप ऑर्गेनाइज करो, और या तो फिर उसे एक पीडीएफ की शक्ल में या फिर एक फाइल की शक्ल में आप उसे कंप्लीट कर दो। दैट विल बी योर पोर्टफोलियो। और आज तो सिंपल कैनवा इतना आसान बना दिया सारे काम को। वहाँ पे अगर आप सर्च करोगे पोर्टफोलियो, तो वहाँ पे इतने सारे फ्री टेम्पलेट्स हैं कि आप सिर्फ उसमें टेक्स्ट चेंज कर दो, और उसमें जितने भी ग्राफिक्स हैं उस ग्राफिक्स की जगह पे आप अपने ग्राफिक्स लगा दो, और फिर उसमें जितने भी पोस्ट की जगह होती है या फिर फोटोज की जगह होती है या फिर लोगो की जगह होती है, वहाँ पे अपनी लोगो लगा दो, एंड देन यू आर डन। फॉर वेबसाइट आई विल रिकमेंड यू टू गो टू Behance और इन Blogspot। अगर आप एक कंटेंट राइटर हो देन यू कैन ऑल्सो स्विच टू Blogspot। वहाँ पे भी आप अपने अकाउंट को बनाओ और फिर वहाँ पे आप अपने ब्लॉग्स को पोस्ट कर सकते हो, या फिर जो आपने प्रीवियस कंटेंट राइटिंग्स पे काम किया है उसे आप वहाँ पे लगा सकते हो। दैट विल बी द बेस्ट प्लेस। आपको सिंगल पेनी भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका एक पर्सनल वेबसाइट हो, तो आप एक बहुत कम पैसे में एक डोमेन खरीद सकते हो, .com या फिर .org, और फिर सिंपल आप विक्स से या फिर किसी एक टेम्पलेट की मदद से आप एक सिंपल सा पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसमें सिर्फ 2-3 पेजेस हो, लैंडिंग पेज हो जहाँ पर सिर्फ आपका इंट्रो हो, एंड देन योर स्किल सेट, एंड देन योर पास्ट प्रोजेक्ट्स, एंड देन टेस्टिमनीज, एंड देन योर कॉन्टैक्ट मी और गेट इन टच बटन, जिससे कि वो एक फॉर्म फिल कर सके एंड दे विल reach you out, as simple as that. And now one more form you can create your portfolio, and that is in video format. If you are good with camera, speaking and little bit in editing, then turn on your camera, shoot yourself like, hey everyone, this is my portfolio and they are my past projects or testimonials or results that I have brought in with my previous clients, like that, and edit that video. Simply cut all the waste part and then add all your screenshots of your testimonials or the posts that you have created or the website that you have created. Post their screenshot and then you are done. आप जो है ना वीडियो फॉर्मेट में जब अगर किसी को अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, देन यू टेंड टू बी मोर ट्रस्टेबल। आप जो है ना एक अलग तरह के कनेक्शन को वहाँ पे बिल्ड करते हो, और क्लाइंट जो है आप पर ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। So creating a portfolio is very easy, but having a portfolio is very important for every freelancer, और स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो। और उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि आपके पास कोई पास्ट प्रोजेक्ट्स नहीं है। उस वक्त आपके पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान है। तो हो सकता है कि वो क्लाइंट को पसंद आए या ना आए, बट यू हैव टू स्ट्रगल एंड यू हैव टू कीप फाइंडिंग योरसेल्फ। और पोर्टफोलियो जो है ना, जब जैसे जैसे आप एक्सपीरियंसेस और गेन करोगे, जैसे जैसे आप अपने आप को और फाइन करते जाओगे, आपकी पोर्टफोलियो खुद अपने आप बनती जाएगी। But for starting, try to just start, not to be perfect, right? तो बस enough for this video. I hope you have got my points. आप जान चुके होंगे कि किस तरीके से आप एक appealing portfolio को बना सकते हो. So still, if you have any queries, then comment in comment section. I will give you the best possible answer. Till then, take care, keep exploring, and have a good day.